हेलो, वेलकम बैक एवरीबॉडी। सो आज हम करेंगे नेक्स्ट टू फिगर ऑफ स्पीच एंड इट विल बी अ थर्ड पार्ट ऑफ आवर वीडियो. So today we will take a inversion and onomatopoeia. What's the difference between these two figure of speech? Okay, inversion and onomatopoeia जो है थोड़े complicated figure of speeches है, and you have to keep a little bit of techniques in mind. First of all, come to an inversion. Inversion देखिए simply inversion break it in and verse. So यहाँ पे मीनिंग क्या निकलता है? नॉट स्टेटमेंट. So you can see that when a sentence is not written in a correct order, अगर कोई सेंटेंस सही या करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखा गया है तो हम उसको इन्वर्शन कहते हैं, यानी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखा गया. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया हुआ नेवर फ्रेंड्स मेक ही, नेवर फ्रेंड्स मेक ही. एक्चुअली देखिए इस तरह के जो सेंटेंस है ये पोयम में ज़्यादा यूज होते हैं टू गिव अट्रैक्शन टू मेक अ पोयम वेरी ब्यूटीफुल. सो नेवर फ्रेंड मेक्स ही, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो सकता है? ही नेवर मेक्स फ्रेंड. सो लेट डिस्कस समथिंग मोर अबाउट इट. इन्वर्शन जैसे कि मैंने आपको बोला कि इट्स नॉट अ करेक्ट ऑर्डर. सो यू कैन से दैट a sentence is not written in correct order, right? A sentence is not written in correct order. It's a form of inversion. Inversion. Come to an example. In the evening, it has died away. Now, can you get it? In the evening, it has died away. What is the correct order? So the correct order will be like this. It has died away in the evening. ठीक है, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई उसका ऑर्डर है या नहीं है. अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो वो इन्वर्शन है. आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई ऑर्डर में लिखिए उसको. सिंपली यू हैव टू टेल. कम टू नेक्स्ट एग्जांपल. Sunbird I climb. So what will be the correct order? I climb sunbird. It's a correct order. So again, sunbird I climb, inversion. Let's take some other examples. So many things you have not dreamed of.
It's inversion. ठीक है, no need to write correct order, but still we will discuss what will be the correct order of this. Can you guess it? You have not dreamed of so many things. Come to other example. Had once been his integrity put to test. Now, what will be the correct order of this? His integrity. His integrity had been once put to test. So, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इन्वर्जन किसको बोलते हैं। कोई भी सेंटेंस, कोई स्टेटमेंट जो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है उसको इन्वर्जन कहते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस our next favorite speech, which is onomatopoeia. Very interesting. Onomatopoeia. Onomatopoeia, देखिए, just break it. You can see very clearly. Uh, on mito means substitution. O any sound. You have to substitute the sound. Means onomatopoeia suggests the sense of a sound. Example: zoom, zoom, aeroplane fly. तो हिंच एंटायरली फ्रिंच। सिंपल मैं ये कहूँगा कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे साउंड को। द वर्ड विच इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन। अब वो वर्ड कौन सा होगा? साउंड का, यानी कोई भी वर्ड जो साउंड को रेफर करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओनोमाटोपिया। वैसे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओनोमाटोपिया on substitution of sound, यानी onomatopoeia suggest the sense of sound. Take an example. zoom zoom aeroplane fly, वो आप जानते हैं, ठीक है, but something else. Cracker burst. Now burst यानी burst जो है साउंड है। तो ये burst का मतलब क्या है? Okay, let's see other. The aeroplane is zooming in the sky. Now what do you understand by zooming? Zooming का meaning क्या होगा? Nothing. It simply refer to sound.
एरोप्लेन जूम करके स्काई में जा रहा है, तो जूमिंग वर्ड जो है साउंड को रेफर कर रहा है, यानी सेंस ऑफ ए साउंड। On to next example, the loose house sheet clatter, clatters and clank. Now, the loose house sheets clatters and clank, इसमें हम लिखते हैं कि clatters, clank, ये दोनों जो है साउंड है। देखिए लूज हाउस शीट मतलब होता है पतरे के घर पर जो छत होती है पतरे की होती है, स्टील टिन की बोल सकते हैं आप, सिंपली हम बोलते हैं हाउस शीट उसको। जब हवा चलती है या तेज हवा चलती है तो वो खड़खड़ करती है, खड़खड़ यानी वो हिंदी में बोलते हैं। बट व्हाट वी से मींस वी जस्ट से शीट्स आर क्लैटरिंग। क्लैटरिंग मतलब कोई पर्टिकुलर उसका मीनिंग नहीं है, बट इट रेफर टू साउंड। तो क्लैटर्स एंड क्लैंक जो है वो क्या है, साउंड को रेफर कर रहा है, तो इसको ओनोमाटोपिया। तो यानी मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर इस तरह के वर्ड यूज किए गए हैं जो साउंड को रेफर कर रहे हैं, वो सेंटेंस आपका ओनोमाटोपिया माना जाएगा। ठीक है। सो ब्लेयरिंग क्रीकिंग ऑफ जैम्ड डो। जैम डो, कई सालों से कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं है, जब खोलते तो एक अजीब सी आवाज आती है, क्रीकिंग साउंड आती है उसकी। तो साउंड क्रीकिंग जो वर्ड है वो क्या साउंड रेफर कर रहा है। तो सिंपली आप समझ गया कि ओनोमाटोपिया का मतलब क्या हुआ, वर्ड्स विच रेफर टू साउंड, यानी अगर साउंड वाले वर्ड यूज किए गए हैं तो वो सेंटेंस आपके क्या माने जाएंगे, ओनोमाटोपिया। ओके, so I hope that you will get it, and if you have a doubt just forward me. I will absolutely will help you. In fact, there's a lot more to discuss, but due to shortage of time, we have to stop here. Okay, thank you.